ओके, सो इजेक्टर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मैंने बोला था आई विल टीच यू इजेक्टर इन डेप्थ अगेन। तो क्या कैसा है इजेक्टर, ये देखिए, दिस इज अ सक्शन चेम्बर, इसमें एक नोजल बनाया हुआ होता है। मोटिव मोटिव नोजल क्यों बोला है इसको, कि जो जनरली इन स्टीम एप्लीकेशंस, अगर रेफ्रिजरेशन को हम थोड़ा साइड में रखें तो स्टीम एप्लीकेशन में जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाला स्टीम होता है वो हम वहाँ से एंटर करवाते हैं, उसे मोटिव स्टीम बोलते हैं जनरली। तो दैट्स व्हाई इट इज मोटिव नोजल। ओके, देन ये मिक्सिंग सक्शन चेम्बर। ओके, देन सक्शन चेम्बर के बाद में देर इज इन थ्रोट, जहाँ पे क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, वो मिक्सिंग चेम्बर। ओके, एंड एट एंड देर इज डिफ्यूजर। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे होंगे वेलोसिटी एकदम बड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे प्रेशर कम होगा, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा, यहाँ पे प्रेशर वापस रीगेन होगा, बढ़ेगा। व्हाट हैपनिंग विद द वेलोसिटी, ज़्यादा, देन कांस्टेंट एंड देन कम, क्योंकि ये बढ़ते जा रहे हैं ना क्रॉस सेक्शन। तो this is a secondary fluid, this is a primary fluid get mixed. Okay, so this is primary core. Okay, then इसको throat भी बोलते हैं इस diameter को mixing chamber के, and then this particular diffuser at end. So let's see what happens in it. Is it visible to you and I am audible, student? Yes, sir. An ejector has two inlets. Okay, one to admit motive fluid stream at a high pressure fluid, and other to admit secondary fluid stream. Okay, one to admit motive fluid stream and other to admit secondary flow stream. Okay, at low pressure. Secondary थोड़ा low पे रहेगा, primary high पे रहेगा, ये वाला जैसे बोला मैंने, ये generally stream applications. The motive fluids enters the converging diverging nozzle where the pressure energy of the fluid is converted to kinetic energy as a result at the exit of nozzle. अभी यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस सेक्शन कम किया है, इधर से फ्लूइड आ रहा है तो ऑब्वियसली उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। ओके, so the motive fluid enters in converging diverging nozzle where the pressure energy of the motive fluid is converted to kinetic energy, as a result exit of the nozzle and the fluid velocity becomes supersonic and a low pressure zone is created यहाँ पे, ठीक है। This low pressure created enables the secondary fluid to entrant or pump through other inlet। अभी क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, इधर में प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो वो तो फ्लूइड का टेंडेंसी है ना हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो होना, तो ये अंदर में सक्ट इन होगा और यहाँ पे मिक्सिंग होगा। ओके, सो दिस लो pressure created enables the secondary fluid to entrant or pump through the inlet. Okay, and the entrant vapor flow subsequently mixes with the motive fluid flow while they move through the converging section of the ejector। तो ये जो converging section है यहाँ पे फिर उनका obviously mixing होगा, तो particularly goes through nozzle, so velocity will increase and by Bernoulli's law obviously pressure will lower down here. So what will happen, at out there is a high pressure and in there is a low pressure zone is created, so this secondary flow will come in and get mixed over here. Okay, then the mixing will happen subsequently. So this low pressure created enables secondary fluid to enter or pump through other inlet, and the inlet vapor flow subsequently mixes with the motive fluid flow while they move through the converging section of the ejector, thereby increasing the pressure at expense of kinetic energy. Okay, so then obviously there ahead there will be increase in pressure and lowering of velocity. Okay, the motive fluid slows down and entrant stream speeds up. Okay, here onwards what will happen, motive fluids will slow down and entrant stream जो mixed stream है that will speed up, and at some point downstream the mixing chamber the mixed flow reaches the speed of sound, means sonic, and a stationary shock wave is produced there as a result of sharp rise in absolute pressure. तो at some point it will happen कि subsonic में वो पहुंच जाएगा और वहाँ पे there is a rise in absolute pressure will happen. The basically in diffuser the shock wave in the diffuser throat shifts the velocity of mixed stream from supersonic to subsonic. Which initially look, the motive stream is at supersonic, then mixture becomes sonic, and in diffuser और speed कम होने के बाद में it becomes subsonic. Okay, then in diverging section
The increasing cross-sectional area increases this pressure at the expense of kinetic energy over there. Okay. The net result being an increase of absolute pressure of the mixture on discharge to several times the pressure at which secondary fluid entered the ejector inlet. तो इसका आउटपुट क्या है कि इस प्रेशर पे जो लो प्रेशर पर्टिकुलर इस लो प्रेशर पे वॉट एवर द सेकेंडरी फ्लूइड यू हैव एंट्रेंड यह मॉडरेट प्रेशर तक पंप होगा एंड दैट इज द आउटपुट ऑफ दिस बेसिकली इजेक्टर. इसको थर्मोकम्प्रेसर भी बोला जाता है थर्मल लैंग्वेज में. मीन्स व्हेन वी हैव स्टडीड इट वी स्टडीड इज एट अ थर्मोकम्प्रेसर. इजेक्टर तो खैर उसको बाद में रेफ्रिजरेशन वगैरह इसमें यूज होने लगा करके. बेसिकली इट इज अ कॉम्प्रेसर थर्मोकम्प्रेसर की एक लो प्रेशर स्ट्रीम को हाई पर्टिकुलर इसके साथ मिक्स करके प्रेशर स्ट्रीम के साथ मिक्स करके उसको मॉडरेट पे पंप किया जाता है इंटरमीडिएट प्रेशर पे. दोनों के बीच वाले एक प्रेशर पे उसे पंप किया जाता है. वही उसका आउटपुट है पर्टिकुलर इस थर्मोकम्प्रेसर का या इजेक्टर का. ओके. थर्मोकम्प्रेसर इन केस ऑफ इफ स्टीम इज यूजिंग इन दैट पर्टिकुलर. ओके. एंड रेफ्रिजरेशन में जनरली उसे इजेक्टर ही बोलते हैं. सो बेसिक इजेक्टर रेफ्रिजरेशन सिस्टम अगर हम देखें तो कैसे. सो हियर यू कैन सी लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बॉयलर. पहले फीड वाटर लिया, पंप हम उसे करेंगे टू द बॉयलर. बॉयलर में वो हिट होगा कन्वर्टेड टू स्टीम. देन उसे मोटिव स्टीम इजेक्टर में डालेंगे और फिर क्या होगा वो मॉडरेट एक जो फ्लो बन रहा है ओके वो दिस लो प्रेशर एंड दिस हाई प्रेशर विल मिक्स टू फ्रॉम अ मॉडरेट प्रेशर. फिर उसे कंडेंसर में हम कूल करेंगे. ओके. एंड ये फ्लो इधर ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया. ये हो गया पावर साइकिल. ओके. नाउ लुक एट रेफ्रिजरेंट साइकिल. फिर क्या करेंगे ये जो इधर से कंडेंसर के बाद वाला जो है पर्टिकुलरली उसे एक्सपेंशन डिवाइस से पास आउट करके लो प्रेशर लो टेम्परेचर ये पर्टिकुलरली इवापोरेटर से हम पास ऑन करेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा इट विल स्लाइटली इट विल विड्रॉ द हीट एंड स्लाइट इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट ऑफर कंपेयर टू दिस प्रेशर इज वेरी लेस. तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब ये पहले नोजल में जाके ये होगा तो यहाँ पे ये एक सक्शन क्रिएट करेगा, वैक्यूम क्रिएट करेगा. उसके बाद में ये सक्ट इन होगा यहाँ पे. ओके. एंड दो बोथ मिक्सेस एंड पंप अहेड. ओके. सो अगर हम देखें तो इस साइकिल का जो पंप है या मोटिव फोर्स है वो है पंप. ओके. एंड व्हाइल वी लुक एट दिस साइकिल, इस पूरे साइकिल को अगर कोई पंप कर रहा है रन कर रहा है तो वो है इजेक्टर. बिकॉज इट इज यहाँ पे वो सक्शन क्रिएट कर रहा है देन सेंडिंग अहेड एंड मेंटेनिंग. तो इजेक्टर को बेसिकली एज अ पंप बोल के भी बहुत सारे फीडबैक लूप्स में या वेस्ट हीट रिकवरी लूप्स में यूज किया जाता है. ओके. दैट इज द अनदर पार्ट ऑफ डिस्कशन. द इजेक्टर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज कंपोज ऑफ टू सब साइकिल्स. ये जो अपर वाला है ये कौन सा है पावर साइकिल, पावर सब साइकिल. एंड अगर नीचे वाला हम सब साइकिल पकड़े तो इट इज अ रेफ्रिजरेशन. पावर कैसे पंप boiler then this and then condenser. Okay. So this is a power cycle. While look at this ये पूरा रेफ्रिजरेशन साइकिल है. अभी पावर साइकिल और ये कैसे पहचानते हैं. यस. जहाँ पे बॉयलर पंप और बॉयलर एंड कंडेंसर आ गया तो पावर, कंडेंसर एंड इवापोरेटर आ गया तो रेफ्रिजरेटर. हमेशा ध्यान में रखो. ओके. सो ये टू सब साइकिल से बना है. वन इज पावर, वन इज दिस बेसिकली रेफ्रिजरेशन साइकिल. यहां तक समझ में आया. ओके. इन द पावर सब साइकिल लो ग्रेड हीट QB इज सप्लाइड टू द बॉयलर. ये QB सप्लाई किया बॉयलर को टू और जनरेटर टू इवापोरेट हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट प्रोसेस 1 to 2. ओके. एट स्टेट पॉइंट 2 द हाई प्रेशर वेपर जनरेटेड नोन एज अ मोटिव फ्लूइड. ये जो 2 पे जनरेट हुआ इसे बोलते हैं मोटिव फ्लूइड. enters the ejector and expands through converging diverging nozzle creating a low pressure zone. तो क्या होगा ये जब इजेक्टर में से पास होगा तो यहाँ पे फर्स्ट जो नोजल रहेगा वहाँ पे उसका वेलोसिटी विल ट्रिमेंडसली इंक्रीज. सो ऑब्वियसली प्रेशर विल गो डाउन. सो इट विल क्रिएट अ सक्शन. okay or low pressure zone. okay. And this reduction in pressure entrains the vapor from the evaporator known as secondary fluid at point 3. okay. The entrant vapor flow subsequently mixes with motive fluid flow before entering into the diffuser. मतलब ये आगे ये वाले डिफ्यूजर सेक्शन में जाने के पहले यहाँ पे वो मिक्स होगा, वही बोला गया है.
Okay. The entrant vapor flow subsequently mixes with the motive fluid flow before entering the diffuser, while combined flow moves through the diffuser. Okay. Then the flow deaccelerate and pressure recover again. इस particular इसमें क्या होगा diffuser में वही बोला गया है, while combined flow moves through diffuser, the flow deaccelerates and pressure recovery occurs. Okay. The combined fluid then flows to the condenser where it's condensed, rejecting heat to the environment QC. ओके ये एनवायरनमेंट में हीट रिजेक्ट होगा. ओके एंड एट अ कंडेंसर आउटलेट द फ्लूइड स्ट्रीम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एट 0.5. यहाँ पे ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा 1 and 2. सो व्हाट विल हैपन अहेड, the condenser outlet fluid stream is divided into two parts at 0.5. One portion is then pumped to the boiler for the completion of power cycle and the other portion is expanded to the expansion device. Okay. सो एक जाएगा पंप होके बॉयलर की तरफ और एक होगा एक्सपेंशन डिवाइस में से जाके ये रेफ्रिजरेशन करवाएगा यहाँ पे. ओके. सो द अदर पोर्शन इज एक्सपेंडेड टू द एक्सपेंशन डिवाइस एंड एंटर्स द इवापोरेटर ऑफ द रेफ्रिजरेशन सब साइकिल एट 0.6. दिस इज 0.6. ओके. The refrigerant absorbs latent heat of vaporization producing or refrigerating effect QE. This is QE. And the resulting vapor is then entered into ejector at 0.3. यहाँ पे वो 0.3 पे मिक्स होगा. The refrigerant, that is secondary fluid, mixes the primary fluid in the ejector and is compressed to the diffuser section before entering the condenser at 0.4. मतलब ये दोनों मिक्स होके 0.4 पे you will get something. Okay, means of mixture. Okay, moderate pressure पे जो रहेगा. The mixed fluid condense in condenser and exit at 0.5. Then it is forced to the condenser and condense at 0.5 for the repetition of refrigeration cycle. So now ये जो था ये एक सब पावर साइकिल सब रेफ्रिजरेशन साइकिल ये हमने एक वेरिएशन देखा बेसिक इजेक्टर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में.